Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Cancer Ascendant and how the month of September 22 is going to pan out for the Cancer Ascendant people. Cancer Ascendant is a very powerful ascendant and people born in this ascendant are natural leaders. And if the moon is well placed, that is in ascendant in the second house, fourth house and 11th house, along with the benefit placement of Mars in second, sixth, and 10th house in their own chart, then such people go places in their life. Now, talking about the month of September, in the first half of September till the 16th of September, Sun will be occupying its own house, and as a result, people will see very good progress on the self earned wealth as well as get together with the family members, and they will have a very good time with them. A function or social gathering with family members is possible that will bring its own benefits of networking. The highly benefic Mars will also cast its fourth aspect on the second house, and as a result there will be a further boost to the significators of the second house. So people who are interested in investing in government bonds, fixed deposit, treasury bonds and gold, they will all see a good investment return in the month of September. In fact, any such kind of an investment made in the month of September will prove to be very beneficial for Cancer ascendant people in the long run. Let us also look at Jupiter. Jupiter is currently posited in the ninth house, and for Cancer ascendant people, it is also the owner of sixth house, which also indicates service. So all the people who are in service will see a good time on the job front in the month of September. Jupiter will continue to aspect the ascendant as well as the fifth house, and although it is retrograde, it will still be beneficial because its aspect is something which always protects the houses. In this case, it is also going to be partnered by Mars. Mars is going to look at the fifth house through its seventh aspect and Jupiter through its ninth aspect. So all those people who are interested in activities that are related to fifth house or do activities that are related to fifth house as a profession. So if you are in the line of education, you are some kind of an artist who uses creativity in your profession, or if you are a speculator, then month of September is going to be very beneficial for you. Students will find it a very good month, and speculators will also have a jolly good time for the whole of month. 23rd and 24th September is a very good time for people who are romantic and are keen to express the feelings of their heart. Let us look at Mercury. Mercury is going to occupy its own sign in the third house. So communications with younger siblings will help in improving relationship with them. If you take some kind of a short term travel, then this will also be beneficial because Jupiter is aspecting through the seventh aspect. So if it is related to religion, then also it will be beneficial. If you are residing in a foreign country or work in an MNC, then the clear lines of communication will help you to build your equity in the month of September because Mercury also owns the 12th house here. Saturn is posited in the seventh house and it is going to continue to make your life boring. Saturn, however, is going to pass through the star of Mars in the month of September, and as a result, some kind of a gain is certainly possible through your business partnership or even through with your spouse. So it will certainly be better compared to last month as far as the married life is concerned. Mars is present in the 11th house and is passing through its own star. This would mean that large gains from 10th of August to 15th of October are possible through properties or through lands which are both signified by Mars. Mars is going to cast its eighth aspect on the sixth house, and it is going to protect your health and job because Mars is a highly benefic planet for the Cancer ascendant people. Now, there are also certain dates when a person needs to be careful, and these are the dates when Moon passes through your sixth, eighth, and 12th house. So, for the Cancer ascendant people, these dates in month of September are 5th and 6th September, 9th and 10th September, 18th, 19th, and 20th September. These are the dates when you should remain careful in the month of September and avoid taking any big decisions. Overall, this will be a fruitful month for Cancer ascendant people as
The second house lord in the second will ensure that they get together with the family, protect their self-earned wealth, and have a jolly good time. So this was the summary for the month of September for Cancer Ascendant people. If you have liked my video, please do subscribe to my channel and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं कि कर्क लग्न वालों के लिए सितंबर 2022 का महीना कैसे साबित होगा। देखिए, कर्क लग्न एक बहुत ही पावरफुल लग्न कहलाता है। अगर आप कर्क लग्न में जन्मे हुए हैं तो आप देखेंगे कि आप में कुछ ऐसे लीडरशिप के ट्रेट्स हैं जो बहुत से लोगों में नहीं होते हैं, और कर्क लग्न में पैदा हुए लोग नेचुरल लीडर्स कहलाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र की स्थिति बहुत अच्छी है, यानी वो लग्न में ही बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में बैठा है, चतुर्थ या 11वें भाव में बैठा हुआ है, और इसके साथ मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, यानी वो दूसरे, छठवें या 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों की बहुत प्रगति होती है जीवन में। ये लोग फर्श से उठ के अर्श पे जाने वाले लोग होते हैं। तो एक बार सितंबर के महीने पे दृष्टि डालते हैं। प्रथम भाव में 16 सितंबर तक सूर्य अपनी ही स्थागर में बैठे हुए हैं, स्वयं की राशि में, जिसके परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे कर्क लग्न वालों को। आपका परिवार के साथ संबंधों में बहुत सुधार आएगा। आपका कोई परिवार के और एक्सटेंडेड फैमिली के साथ कोई गेट टुगेदर हो सकता है। आपके स्वयं के अर्जित आय के नए स्रोत खुलेंगे सितंबर के महीने में, और आपको ये जो गेट टुगेदर होगा इससे आपकी नई नेटवर्किंग बनेगी। मंगल की भी चतुर्थ दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ेगी। मंगल योग कारक ग्रह कहलाता है कर्क लग्न वालों के लिए। तो ओवरऑल द्वितीय हाउस के हिसाब से अगर आप देखेंगे, यानी कि सेल्फ अर्न्ड वेल्थ हो गई या परिवार के साथ किसी भी तरह का कोई फंक्शन हो गया, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा कर्क लग्न वालों को। जितने भी लोग कर्क लग्न के सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, या सिक्योरिटीज गवर्नमेंट की आती हैं, बॉन्ड्स आते हैं, या सोना, क्योंकि सूर्य सोने का भी कारक होता है, तो अगर आप अपनी सेल्फ अर्न्ड वेल्थ वहां पर इन्वेस्ट करते हैं तो इसके आपको लंबे समय में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर आप इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा। एक नज़र गुरु पे डालते हैं। गुरु छठवें और नवे भाव के स्वामी हैं कर्क लग्न वालों के लिए, और नवे भाव से ही अभी भ्रमण कर रहे हैं। तो यहाँ पर सर्विस जितने भी लोग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा सितंबर के महीने में। जुपिटर यहाँ से लग्न स्थान को देखेगा और पंचम भाव को भी देखेगा, तो जितने भी लोग संतान की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छा समय है। जब तक गुरु यहाँ 2023 तक बैठे हुए हैं तो वो आपको ऐसा मौका देते रहेंगे। यहाँ पर पंचम भाव पे मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। मंगल स्वयं का घर को देख रहा है 7वीं दृष्टि से, और गुरु 9वीं दृष्टि से देखेगा। तो जितने भी लोग पंचम भाव से जुड़े हुए व्यवसायों में हैं, यानी आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिविटी का कोई भी काम करते हैं, एजुकेशन लाइन में हैं, या शेयर बाजार से संबंध रखते हैं, उनके लिए पूरा सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये गुरु की जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी ये आपके पंचम स्थान को बचाती रहेगी किसी दुष्प्रभाव से, और मंगल की 7वीं दृष्टि स्वयं के भाव पे पड़ रही है, तो पंचम भाव से जुड़े हुए रिजल्ट आपको बहुत मजबूती से मिलेंगे सितंबर के महीने में। 23 और 24 सितंबर बहुत अच्छा समय है उन लोगों के लिए जो कोई नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या किसी को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी सितंबर का महीना बहुत अच्छा साबित होगा और उनका पढ़ाई में बहुत मन लगेगा। एक नज़र बुध पे डालते हैं। बुध अपनी ही भाव को ऑक्युपाई कर रहे हैं तृतीय भाव में बैठ के। तो अगर आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ उनके साथ संवाद करना चाहते हैं, उनको कुछ समझाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। आप जितना उनके से बातें करेंगे उतने ही आपके संबंधों में सुधार आएगा। अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री में बैठे हुए हैं इस समय में, या आप किसी एमएनसी में काम करते हैं, तो आप जितना क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे आपके लिए स्थिति उतनी अच्छी होती जाएगी। कर्क लग्न वालों के लिए बुध तृतीय भाव के अलावा 12वें भाव का भी मालिक होता है, और 12वें भाव से आप सारी फॉरेन एंटिटीज को देखते हैं। तो अगर आप जितना इन लोगों के साथ अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। शनि सप्तम भाव से गुजरते रहेंगे इस सितंबर के महीने में भी, और यहाँ पे बैठ के वो आपकी शादीशुदा जीवन को बोरिंग बनाते रहेंगे। लेकिन ये महीना अगस्त के महीने के मुकाबले में बहुत बेहतर निकलेगा, क्योंकि शनि यहाँ पर मंगल के नक्षत्र से गुजरेंगे, और मंगल कर्क लग्न वालों के लिए बहुत ही अच्छा ग्रह है, योग कारक ग्रह कहलाता है। तो यहाँ पे बैठ के आपको गेन्स दिलवाएगा शनि।
अब ये गेन्स आपका अगर खुद का बिजनेस है तो बिजनेस पार्टनरशिप से मिलेंगे, नहीं तो आपको आपके पति या पत्नी के थ्रू गेन्स होंगे सितंबर के महीने में। तो पिछले महीने के मुकाबले में शनि बेहतर परिणाम देगा इस महीने में। मंगल 11वें भाव में बैठा हुआ है, जैसा मैंने पहले बताया मंगल कर्क लग्न वालों के लिए योग कारक ग्रह होता है। तो यहाँ से बैठ के ये पांचवें घर को देखेगा और छठे घर को देखेगा और द्वितीय घर को देखेगा। तो द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ना यानी कि सेल्फ अर्न्ड वेल्थ में सुधार होना, लेकिन ये तब होगा जब आप मंगल से जुड़ी हुई चीज़ों से धन प्राप्ति का आपका व्यवसाय है या आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। यानी अगर आपने प्रॉपर्टीज या लैंड में इन्वेस्ट करके रखा है तो ये पूरा 10 अगस्त से लेके 15 अक्टूबर तक, जब तक मंगल यहाँ बैठा हुआ है, तो आपको बेनिफिट दिलाता रहेगा। इसकी दृष्टि आठवीं छठवें भाव पे पड़ेगी तो आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा, आपकी जॉब को प्रोटेक्ट करेगा। अब महीने के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब व्यक्ति को सावधान रहना पड़ता है। ये वो दिन है जब चंद्र आपके 6, 8 और 12वें भाव से गुजरता है। तो कर्क लग्न वालों के लिए दिन है 5 और 6 सितंबर, 9 और 10 सितंबर, 18, 19 सितंबर और 20 सितंबर। कुल मिला के 7 दिन है जब आपको सावधान रहना पड़ेगा और कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना टालना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ये अच्छा समय है, खास करके जो फैमिली के साथ रियूनियन होगा और द्वितीय भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में ही बैठना, ये अच्छी चीज़ें दिखलाता है कर्क लग्न वालों के लिए। तो ये आपका कुल मिला के समरी था कर्क लग्न वालों के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।